actually want to understand the contextual relevance of a particular question of UPSC main, then you must watch this video till the end. This question is taken from UPSC CSE main 2024. The question is from GS paper 1. It is related to modern Indian history. The question is, what were the events that led to the Quit India movement? Point out its results. So the first thing before writing an answer, the first thing is identify the key terms of the question. The first key term is Quit India movement. The question is regarding Quit India movement. But the question is not everything about the Quit India movement. Question is about the events that led to the Quit India movement. So the question is regarding the events, the causative factors that led to Quit India movement. So it is not that you write everything and whatever you know about the क्विट इंडिया मूवमेंट. अगर क्वेश्चन में पूछा गया है कि वो कौन से कारण थे, वो कौन सी घटनाएं थी जिसकी वजह से जो क्विट इंडिया मूवमेंट तक ले गई देश को, तो आपको उस इवेंट को डिस्कस करना है. Then the second part of the question is asking to write you results of Quit India movement. So the question has two parts. One is talking about events that led to the Quit India movement, and the second part is talking about asking you to write about the results of the Quit India movement. तो दो पार्ट में क्वेश्चन है. अब इस चीज को हमें ब्रेनस्टॉर्म करना है. क्वेश्चन की डिमांड हमने समझ ली. नाउ वी हैव टू ब्रेनस्टॉर्म एंड वी हैव टू आइडेंटिफाई, वी हैव टू ओपन अप द डायमेंशंस एंड वी हैव टू हाईलाइट द की टर्म्स जिसको हम अपने आंसर में लिख सकते हैं. तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, first you can write an introduction. In introduction you can write about Quit India movement and when it happened, like it started in 1942, but it was not an abrupt movement. It was a mass uprising demanding an end to British colonial rule, but it was not an abrupt movement. It was in a response to a series of national and international development. Series of national and international डेवलपमेंट्स है कि नहीं. तो हमने क्या करा कि हमने इंट्रोडक्शन में ही बता दिया कि जो क्विट इंडिया मूवमेंट है, इट वाज नॉट अ एब्रप्ट मूवमेंट, नॉट अ सडन मूवमेंट जो कि अचानक से शुरू हो गया. इट वाज इन रिस्पॉन्स, इट वाज एन आउटकम ऑफ अ सीरीज ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स. अब अच्छी बात यह है कि हम अपने आंसर को, जैसा हमने इंट्रोडक्शन में लिख दिया, वी विल बी टॉकिंग अबाउट इंटरनेशनल एंड नेशनल बोथ. मतलब क्या है कि हमारा आंसर जो हो जाएगा वो मल्टी डायमेंशनल हो जाएगा. इट विल बी वेरी डाइवर्सिफाइड पॉइंट्स होंगे हमारे आंसर में. अब सबसे जो मेन टास्क हमारा आता है वो है कि हाउ वी कैन राइट द आंसर, व्हाट पॉइंट्स वी कैन आंसर. अब इसके लिए इट विल एंटायरली डिपेंड ऑन योर नॉलेज, how much knowledge you have, how much analytical study you have done about Quit India movement. Then only you can write the points. Otherwise, you will be vomiting whatever everything you know about Quit India movement. That will be simply vomiting, and you won't be getting good marks for that. So let's focus on national and international development. So let's start with national developments. What were the national developments? क्या क्या हो सकते हैं? सबसे पहली बात, फेलियर ऑफ क्रिप्स. राइट, आप क्रिप्स मिशन के बारे में लिख सकते हैं कि हाउ क्रिप्स वाज ऑफरिंग डोमिनियन स्टेटस टू इंडिया आफ्टर द एंड ऑफ द वर्ल्ड वॉर टू. Like it was like completely rejected by the Congress wanted independence, but Cripps mission was offering dominion status. Then you can also talk about that the World War II was undergoing, and resources of India were used in the World War without even the consent of Indian people, Indian political leaders. बिना इंडिया को कॉन्फिडेंस में लिए हुए, बिना भारत को विश्वास में लिए हुए, भारत के रिसोर्सेज से द्वितीय विश्व युद्ध में यूज किया जा रहा था. और भारत के रिसोर्सेज का
लाइक यूटिलाइजेशन हो रहा था, एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था। एंड एंड इट कंटिन्यूड। वर्ल्ड वॉर तो शुरू हो गया 1939 के आसपास। 1939 में वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया एंड क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड इन 1942. So, like for 3 years, the continuous exploitation of Indian resources, be it in terms of human resources, लाइक फंड्स की बात हो या फिर इवन लाइक इक्विपमेंट्स की बात हो, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस की बात हो, हर तरीके से इंडियन के इंडिया ओरिएंटेड, इंडिया बेस्ड रिसोर्सेज का एक्सप्लोइटेशन हो रहा था एंड इट वाज क्रिएटिंग अ डिसेंट अमंग द इंडियंस। ठीक है। थर्ड, एक नेशनल रीजन में आप एक बहुत अच्छा पॉइंट दे सकते हैं, गांधीज रेडिकलाइजेशन। आई डोंट नो गांधी रेडिकलाइजेशन कितना सही है, बट आई वुड कंसिडर इट कि गांधी वॉज रेडिकलाइज्ड while earlier Gandhi was very much focused on negotiation with the British. He was negotiating for each and everything. But before the Quit India movement, Gandhi like became very much ardent, very much vocal about the independence of India. And while Gandhi earlier used to believe the morally and politically, like he used to think that British rule was very good and kind of we cannot openly disobey the British rule, but gradually Gandhi started feeling that British rule was morally and politically indefensible. Gandhi gave the clarion call of do or die. गांधी ने पहले कभी ऐसे दिया नहीं है, करो या मरो वाली स्थिति की गांधी ने घोषणा कर दी। मतलब चाहे वो नन कोऑपरेशन मूवमेंट की बात हो या सिविल डिसोबीडियंस की बात हो, गांधी वॉज वेरी मच फोकस्ड ऑन नॉन वायलेंस। बट जब क्विट इंडिया मूवमेंट की बात आई तो गांधी बिकेम वेरी मच वोकल कि हर हाल में हमें स्वतंत्रता चाहिए, चाहे कुछ भी करना पड़े, करो या मरो की स्थिति आ गई। So this was also a very, you can say, important aspect, important dimension if you are talking about national developments. Then what could be the points in international developments? International development में क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं? फर्स्ट पॉइंट तो आप इंटरनेशनल डेवलपमेंट में यही बता सकते हैं कि द जापानीज थ्रेट एंड फॉल ऑफ बर्मा, जब वर्ल्ड वॉर टू के टाइम जापान जो एडवांस कर रहा था, बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था एंड इट वाज लाइक जापान वाज डिफीटिंग द ब्रिटिश फोर्सेस और आगे बढ़ रहा था, तो उस टाइम द इंडियन लीडर्स फेल्ट दैट इट इज अ राइट टाइम टू लाइक अटैक द ब्रिटिश, नॉट अटैक, लाइक इट इज अ राइट टाइम टू अपोज द ब्रिटिश, टू लाइक आज़ादी का झंडा लगाने का यही सबसे उचित समय है, बिकॉज द लीडर्स, द पीपल फेल्ट दैट द ब्रिटिश आर वेरी वीक, बिकॉज जापान की तरफ से और वर्ल्ड वॉर टू में ब्रिटेन इन्वॉल्व है और ब्रिटेन को बहुत नुकसान हो रहा है, तो क्यों नहीं मौके का फायदा उठाया जाए, यू कैन से बहती गंगा में हाथ धो लिया जाए। तो ये सोच करके दी फॉल ऑफ वर्मा वॉज अ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। आप इंटरनेशनल डेवलपमेंट में इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं। यू कैन ऑल्सो कनेक्ट इट विद लाइक वीकनेस ऑफ द ब्रिटिश, जैसा मैंने अभी बोला, ब्रिटेन के बहुत ज़्यादा रिसोर्सेस, बहुत ज़्यादा हर तरीके से ब्रिटेन के फंड्स, ब्रिटेन की आर्मी, ब्रिटेन के रिसोर्सेज हर तरीके से वर्ल्ड वॉर टू में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे और ये एक तरीके का वीकनेस था। तो लीडर्स को लगा कि दिस इज़ द राइट टाइम टू लाइक आज़ादी के लिए आवाज़ बुलंद की जाए और दिस इज़ द राइट टाइम। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, 3-4 पॉइंट्स थे जिसे आप सीरीज ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल डेवलपमेंट में अपने आंसर में मेंशन कर सकते हैं। अब दिस वुड फॉर्म द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर आंसर। The second part of the answer is about the results. What were the results of Quit India movement? अब रिजल्ट्स को आप दो तरीके से देख सकते हैं, इमीडिएट रिजल्ट्स, दूसरा देख सकते हैं लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स। व्हाट वेर द इमीडिएट रिजल्ट्स? इमीडिएट रिजल्ट तो सबसे पहली बात यही हो गई कि जैसे ही क्विट इंडिया मूवमेंट की घोषणा हुई, सारे पॉलिटिकल लीडर्स जितने भी थे कांग्रेस के, सबको अरेस्ट कर लिया गया एंड द मूवमेंट बिकेम लीडरलेस। जितने भी नेता थे सारे जेल में चले गए। सो द क्विट इंडिया मूवमेंट बिकेम लीडरलेस।
ब्रिटिश का रिप्रेशन हो गया, एंड इट ऑल्सो बिकेम वेरी मच इंटेंस। लीडरलेस तो हो गया, लीडरलेस से एक मिलता जुलता हो गया, रिजल्ट आया इंटेंस। द मूवमेंट बिकेम वेरी मच इंटेंस। देयर स्टार्टेड टू बी हैपनिंग वायलेंट इंसिडेंट्स, वायलेंस होने लगा। वायलेंस के साथ साथ आप ऐसा भी कर सकते हैं कि पैरेलल गवर्नमेंट वाला पॉइंट आप मेंशन कर सकते हैं। हाउ इन बलिया, इन तामलुक, सतारा, हाउ लाइक पैरेलल गवर्नमेंट्स वेर फॉर्म्ड टू डिफाई द ब्रिटिश रूल। तो ये 4 पॉइंट आप दे सकते हैं इमीडिएट रिजल्ट में। बट इमीडिएट रिजल्ट से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लॉन्ग टर्म रिजल्ट देना। क्या लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स थे, क्या लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स थे क्विट इंडिया मूवमेंट के। द फर्स्ट बीइंग मास अवेकनिंग, जागरूक हो गई जनता कि अब तो अंग्रेजों को भगा के ही दम लेना है, छोड़ना नहीं है। जनता जागरूक हो गई। ब्रिटिश पावर का, ब्रिटिश रूल का एंड हो गया। जो लेजिटिमेसी थी ब्रिटिश की, लोगों को लगता था कि ब्रिटिश पावर इज लाइक इनविंसिबल, ब्रिटिश पावर इज वेरी हाईली वेरी पावरफुल, इसे कोई हरा नहीं सकता, इसलिए अब हम वो भारत के ऊपर शासन कर रहे हैं। वो लेजिटिमेसी ब्रिटिश पावर की खत्म हो गई। एंड सिर्फ ब्रिटिश पावर की लेजिटिमेसी तो खत्म हुई, बट कांग्रेस की क्रेडिबिलिटी बढ़ गई। कांग्रेस की क्रेडिबिलिटी इसलिए बढ़ गई कि इट वाज almost it would be right to say that it was like first movement, you can say, which has been so much violent and like so much intense, so much spontaneous, और जिसके लिए मतलब कांग्रेस leaders were directly involved in it. कांग्रेस लीडर्स ऑल्सो wanted it to become violent, हर हाल में अंग्रेजों को भगाना है। इन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आप लॉन्ग टर्म बता सकते हैं, दैट इट सेट द पाथ टू फ्रीडम। द क्विट इंडिया मूवमेंट सेट द पाथ टू फ्रीडम, बिकॉज इसके बाद ही जो है 1946 का कैबिनेट मिशन, जिससे आप कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इंटरिम गवर्नमेंट और 1947 का इंडिपेंडेंस, सारा कुछ इसी से जुड़ा हुआ था। तो ऑल दिस हैपेंड आफ्टर द सक्सेस ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। तो इस तरीके से यू कैन इक्वली एड्रेस both the parts of the question, and in the end you can like mention a very balanced conclusion that though the movement was suppressed by force, it demonstrated India's resolve for complete independence, as because it exposed the hollowness of British claims to rule, and there was it marked a point of no return in India's freedom struggle। ऐसे करके एक आप बैलेंस्ड, एक अच्छा सा विजनरी सा, एक अच्छा सा आप कंक्लूजन दे सकते हैं, तो इससे आपका आंसर कंप्लीट होता है। Do you think that there can be any more, any other dimension that could have been added by me in this answer? Or can you write an answer to this question? क्या आप आंसर लिख सकते हैं? अगर आप लिख सकते हैं तो एक आंसर लिखिए। आई एम गिविंग माई व्हाट्सएप नंबर हियर, यू कैन लाइक सिंपली राइट द आंसर एंड सेंड मी योर आंसर ऑन दिस व्हाट्सएप नंबर। आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए 9958558561। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दीजिए एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। And like I will try to evaluate as many copies as possible, as many answers as possible, but I will also like let you know what benefit, how to like you can improve your answers, and I will also be learning from maybe like you can give some very insightful points that can be like incorporated in this answer. So see you in the next session. Take care. Goodbye.